हाँ जी पुत्र, सो अगे कंटिन्यू करते हैं फंक्शंस ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਰਟੇਨ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਸੇ 0 to t 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੀ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂ, ਟੀ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2t। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ 3t ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, -t ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਂਥ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਂਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਬੇਟੇ 2t। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ t ਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2t ਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ t ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, t ਲੈਂਥ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2t ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3t ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? t। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ all those periods is called fundamental period। तो फंडामेंटल पीरियड अगर t है तो पीरियड है पुत्र वो मतलब t भी होएगा, 2t भी होएगा, 3t भी होएगा। तो इन जनरल कह दिए n इंटू टी ਉਹਦਾ पीरियड होएगा और इन्हें जो सब तो छोटी वैल्यू the smallest interval that repeats that is called the fundamental period of the function। और ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਸੋ that is called the पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और एग्जैक्टली रिपीट करें, मतलब जिमें 0 तो शुरू होया है वही t तो। तो डेफिनेशन तो तुसी अग्री करोगे अगर मैं कहां कि अगर ये पीरियोडिक है विद द पीरियड t, दैट मीन्स दैट मस्ट सैटिस्फाई दिस डेफिनेशन f of x plus t is equal to f of x। ठीक है, where t is some positive number independent of x। मतलब पीरियड x ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ। ठीक है, जिवें आ देखो ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਐਵੇਂ। ਆਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ x ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ x ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ f of x that is equal to f of x plus t, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ f of t plus x। t plus x ਜਿੰਨਾ 0 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ x ਉਨਾ ਹੀ t ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? t plus x। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ x ਤੇ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ t plus x ਤੇ ਹੋਵੇ। ठीक है, सो x ਤੁਸੀਂ 0 है तो जिन्नी वैल्यू 0 ਤੇ उन्नी t ਤੇ है, जिमें जिमें इधर ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾएगा उवें उवें t तो गांगा सेम बनी जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो इस करके दैट वी कैन से दैट इज पीरियोडिक एंड दैट इज द डेफिनेशन। सो अगर कोई इस डेफिनेशन ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ t ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ x, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ t ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एच एक चीज़ होर देखो, अगर मैं ये एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखदा इत्थे इत्थे तो की आ गया? एक्स प्लस 2t। ठीक है, इज इक्वल टू इत्थे कितना आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस टी। एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी? दैट इज एफ एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t। ਇਹਦਾ मतलब 2t भी पीरियड है ਜਿਹੜਾ मैं ऑलरेडी डायग्राम ਨਾਲ प्रूव कर चुके हैं। इदां ही सो ऑन। इस करके अगर t पीरियड है, point to be noted, if t is the period, 2t 3t 4t they are all the periods and the least of those is
t, that is called the fundamental period, and a period है वो x ਦੀ term ਚ नहीं होना चाहिए, that should be some constant independent of x। मतलब मैं ये ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, मैं ਐਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, मैं ਕਹਾਂ जी एक just to trick you कि if I just ask you कि मैं लिखदा कि that is f of x plus x is equal to f of x, फिर मैं कਹਾਂ like आ ते f of x plus t है ते that is periodic with period x, so ते कहांगे ਜਿਹੜਾ period है वो x ਦੀ term ਚ नहीं ਹੁੰਦਾ, therefore this is not है ना periodic, this does not satisfy this condition। ठीक है, सो ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ एग्जाम्पल देखो, मतलब मैं कਹਾਂ एफ एक्स है साइन एक्स कि शो करो ये पीरियडिक है 2 पाई पीरियड ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, तो की करांगे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई पुट करो इधर भी। ठीक है, 2 पाई इत्थे साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, हाँ जी, what is sin of 2 pi plus x, that is equal to sin x, so that is equal to fx। so basically this satisfies this definition, and 2 pi ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ f of x plus 4 pi ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ fx ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 pi ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਸੋ 2 pi 4 pi 6 pi ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 2 pi, ਸੋ ਇਹ sin x ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 pi ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ with fundamental period 2 pi। is that clear? ਚਲੋ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾइन कॉस tan cot ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਚ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ gx ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, that is equal to under root of x minus 2k। ठीक है, कहता where x is lying between किथे 2k and 2k plus 2, where k is integer। कहता check whether gx is periodic or not। तो इन्हों आपा piece wise define कर लिया। let's see what the graph says। k integer है, so k दी वैल्यू केड़ी होएगी, like 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on। so पहला आपा 0 पुट कर दें, let's put x equal to 0। x की वैल्यू 0 है बेटे, आ की सॉरी k की वैल्यू 0 पे पार्डन, तो x कितने आ गया 0 तो लैके 2 तक। सो x आ गया 0 तो लैके इत्थे इक्वल टू नहीं है, राइट, इत्थे ओपन है इत्थे क्लोज है। सो 0 तो लैके 2 दे विच k दी की वैल्यू पुट की 0, फंक्शन की होएगा अंडर रूट x। ठीक है, अच्छा फिर k दी वैल्यू 1 पुट करो, कि आ गया 2 तो लैके हाँ जी 4 तक, k दी वैल्यू 1, ग्राफ की बन गया, फंक्शन की बन गया अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। इदा ही फिर आई गैस चलते रहूगा है ना। हाँ जी 3 पुट करो अंडर रूट ऑफ सॉरी 2 पुट करांगे x माइनस 4, इदा ही चलता रहेगा। सो आ तुसी फंक्शन बना ले, और चलो एक पिछे भी ले लो, वैन k इज माइनस 1 माइनस 2 तो लैके 0 दे विच हाँ जी इत्थे आएगा माइनस 1, तो भी अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। ठीक है, सो लेट अस चेक बाय ग्राफ। ठीक है, जी डेफिनेशन लानी है एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाली, वो जी स्टैंडर्ड फंक्शन होना, चलो यहो जे तुसी ग्राफ ना भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके 0 तो लैके 2 तक अंडर रूट एक्स, 0 तो लैके 2 तक रूट एक्स। ठीक है, दिस इज द रूट एक्स द ग्राफ, 0 ते क्लोज 2 ते ओपन, फिर 2 तो 4 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। कैन यू थिंक ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ लिया तो 2 यूनिट राइट में आ जाएगा, तो आह वाला 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, 0 वाला पॉइंट 2 ते आ जाएगा। सो आ बन जाएगा, फिर इदा ही अगे चलता रहेगा, x की जगह x माइनस 4 आ 4 यूनिट अगे आ जाएगा। ठीक है, सो आई गेस नाउ यू गेट द आइडिया, दिस इज 6, दिस इज माइनस 2, हाँ जी x की जगह x प्लस 2 है तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज सो वी कैन सी लाइक दिस इज आ जी ब्रांच है 0 तो 2 वाली बिल्कुल वही रिपीट कर रही है, और लेंथ जी आ वाली है साड़ी 2 वो रिपीट कर रही है। सो किसी भी जी एक्स की वैल्यू है वो 2 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स की वैल्यू सेम है, हैंस इट इज़ पीरियोडिक विद पीरियड 2। अच्छा नाल दी नाल ना मैं होर पॉइंट लिखा देना वा। अच्छा एक नोट लिख लो होर कि जिदा पहला मैं तुहानू पूछा, इफ आई से कि का ग्राफ बनाया, let's say y equal to minus x when x is less than equal to 0, sin x when x is greater than equal to 0।
इक्वल टू दोनों पासे भावें ला दो क्योंकि वैल्यू सेम है, भावें एक पासे ला दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। एंड सो ऑन। Now if I ask you, is this function gx periodic? ठीक है, ऑन एंड होल इज इट periodic? No, certainly not, because आते हैं नहीं periodic। तो इतने जो मैं पॉइंट दसन की कोशिश कर रहा वो ये है कि अगर मैं कਹਾਂ x when x is greater than equal to 0, 0 ਦੇ ਬਾਅਦ मतलब ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं फोकस नहीं कराया ਤੁਹਾਨੂੰ, 0 ਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं पूछा, हाँ मैं पूछा ही नहीं, मतलब सिर्फ एस इंटरवल पूछा 0 ਦੇ ਬਾਅਦ, ठीक है, इट इज़ सर्टनली periodic। तो ये पॉइंट नोट करने वाला की है जो तुम लिख सकते हो कि जो periodic फंक्शन है दैट कैन बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। ओवरऑल जी एक्स फंक्शन आ वाला periodic नहीं है, बट इफ आई से कि ओवर द इंटरवल 0 to infinity दैट इज periodic। इज दैट क्लियर? समझे गल? सो ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो जनरली एट अ फर्स्ट लुक लगता नॉन periodic, बट उन्होंने पूछो भी किहड़े इंटरवल की गल कर रहे हो भाजी, तो इंटरवल कहेगा जी 0 to infinity, तो कहो बिल्कुल periodic है, ठीक है। सो बाकी तो कहने की लोड़ नहीं, जो एक्स है तो एक्स प्लस टी, एक्स प्लस 2t, एक्स प्लस एन टी, वो फंक्शन की डोमेन च होने चाहिए, मतलब उत्थे फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। तो चलो लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। वो कहता है अगेन पॉज करके ना तुम खुद ट्राई करो पहला। कहता एफ एक ईवन फंक्शन है, चलो सानू पता लग गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, या एफ इज सिमेट्रिक अबाउट वट वाई एक्सिस। जिमें इधर बने एक्स के 0 बनने, इधरले लैफ्ट साइड पर भी वो बनेगा विद पीरियड 2, वह पीरियड भी देते उन्हें, ठीक है। फिर वो कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो लेट अस अगेन गो फॉर द ग्राफ, क्योंकि उन्हें बेसिक जी इक्वेशन दी है कि 0 तो लैके एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल 0 to 1। सो 0 तो लैके 1 तक पुत्र उन्हें इक्वेशन देती है y इक्वल टू एक्स, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन। नाउ फिर कहता दी वैल्यू लभो, तो चलो आते उन्हें एक क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मैं तुम्हें पहला पूछा फंक्शन डिफाइन करो, तो एनू वरतीए ईवन का मतलब की हो गया कि जिदा ये 0 to 1 च है, अगर एफ एक्स है, आप लास्ट एक्सटेंशन वाली वीडियो किया ईवन एक्सटेंशन, तो इधर कि होगा एफ ऑफ माइनस एक्स। सो इतने एक्स की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो आ वाला हो गया दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, राइट, बिकॉज इट इज ईवन। जिमें इधर होएगा मैं इधर होएगा। हुण आ लेंथ टोटल कितनी है, लेंथ टोटल -1 तो लैके 1 तक 2, और इसका पीरियड भी 2 है। ਇਹਦਾ मतलब यही चीज़ अगर कॉपी पेस्ट करी जाओ, मतलब आही चक के सारा इत्थे रख दिए तो की बनेगा इदा इस तरह, ठीक है। यही गहाँ गहाँ रिपीट हो जाएगा। सो अगर मैं हुण फंक्शन डिफाइन करन नूं कहां तुसीं कढ सकदे हो, दिस इज 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। सो आ तुहाडा एक ब्रांच बन गई 0 तो लैके 1 तक y इक्वल टू एक्स, ठीक है। यदि इक्वेशन कर लो, ठीक है, y इक्वल टू बन जाएगा 2 माइनस एक्स, यदि y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यदि तुसी कहाँ कहाँ स्ट्रेट लाइन है ना, यदि स्लोप 1 है, यदि -1 तुसी कोई ना कट सकते, ठीक है। सो हुण कहते जी एफ ऑफ 3.14, 3.14 इत्थे किते है। सो आ लाइन केड़ी है 4,0 चो पास कर रही है, स्लोप -1, आ वाला पार्ट बेटे। सो ये आ जाएगी y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यू कैन कैलकुलेट, राइट। सो x की वैल्यू 3.14 इत्थे पुट कर दो, दैट इज 4 माइनस 3.14 थोड़ा y आ जाएगा। एंड मोर ओवर इतने चलो एक छोटा सा सवाल सी, अदरवाइज ही कैन आस्क सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। कोई समेशन करके f ऑफ 2 f ऑफ 4 एंड सो ऑन, वट एवर कैन बी आस्क्ड। सो दो इन्फॉर्मेशन दी सी, एक ईवन वाली वो यूज़ कर ली, एक पीरियडिसिटी वाली वो वरत लिया, ठीक है। सो हुण इदा करते हैं, आई होप तुहानूं आइडिया क्लीयर हो गया है ना। और मोर ओवर तुम देखो ना नेचर के अंदर भी कितनी सारिया चीज़ां बिकॉज पीरियडिक है, मतलब डे नाइट को लैके देख लो, या बेसिकली आइडिया इत्थों आया क्योंकि वो सारिया टाइम के नाल पीरियडिक है, यू नो, ठीक है। अच्छा हुण लिख लो लिस्ट ऑफ, हैडिंग नोट कर लो, मैं बोलिया लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पीरियडिक फंक्शंस एंड देयर रिस्पैक्टिव पीरियड्स, ठीक है। उन्हां दी पीरियड्स ते उन्हां दे लिस्ट बना लिए। ओके, नंबर 1 सब तो पहला पुत्र फंक्शन ਜਿਹੜੇ पीरियडिक होंगे हैं, आई गैस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो एवें करो, लिख लो पहला साइन एक्स, पावर भी लिख लो साइन एक्स की पावर n। हालांकि अगर पावर की गल करें ना साइन स्क्वायर साइन क्यूब, उन्होंने मैं एज अ सैपरेट आर्टिकल भी डील कर सकता, आई ओबवियसली टेल यू आफ्टर दिस, बट रिजल्ट है तो चित्ते रखो, इतने इकट्ठे ही रख लें कॉस एक्स की पावर n,
ठीक है, सीकेंट एक्स दी पावर n ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ x ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, मतलब यस और नो। तो पहली गल तो ये सारे पीरियोडिक है और इन्हों का पीरियड कितना पुत्र, अगर तो n ऑड है, ठीक है, दैन तो पीरियड होएगा इन्हों का 2π, मतलब साइन क्यूब, कॉस क्यूब, साइन दी पावर 5, सीकेंड दी पावर 5, ठीक है। एग्जाम्पल एक नाल लिख देना, साइन रेस्ट पर 5x, कुछ सीकेंट रेस्ट पर लेट्स 11x एटसेट्रा। तो इन्हों का पीरियड की है, पहली गल तो पीरियोडिक है और पीरियड इज़ 2π। रीजनिंग में दे देना, पहले लिख लो, और अगर n इवन है दैन दे आर पीरियोडिक विद पीरियड π। अच्छा, ये जिहड़ा आ चीज़ होनी मैं समझाई ना कि ईवन च उन्होंने एवें समझो, नाल नाल ना आपां करी भी जाइए। जिवें मैं कहां fx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। नाउ अगेन मैं क्या की तरीका है, या तो बेसिक डेफिनेशन या ग्राफ देख लो। ग्राफ थानू पता है कि आ ग्राफ है साइन एक्स का, ठीक है, 0 टू पाए, पाए टू 2π। स्क्वायर करना की होएगा, जी नैगेटिव वैल्यू आती है वह स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। स्क्वायर करना की होएगा, आ वाला पॉइंट जो आप पुट करोगे, जिमें कि पॉइंट है 3π/2, 3π/2 तो साइन का आंसर -1 है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो जो नीचे वाला पार्ट है बेसिकली ऊपर एवं आ जाएगा, ठीक है। तो की होएगा कि आ वाला जो ग्राफ है ये साइन स्क्वायर का इस टाइप का बनेगा, आ ऊपर वाला आ। सो नाउ यू कैन सी कि लेंथ कि रिपीट कर रही है, पाई वाली, आई वाली ब्रांच अगे आ गई, आई एंड सो ऑन, ठीक है। सो ग्राफिकली तो नज़र आ गया। एंड मोर ओवर इनू अगर मैं डेफिनेशन ना कराना हो, अच्छा मैं की क्या सी, घट्टो घट्ट टी, अगर मैं कहा x प्लस टी पुट करदा तो मिनिमम टी फंडामेंटल पीरियड है, क्योंकि साइन है पुत्र, x प्लस 2π करांगे वो तो सैटिस्फाई करूगा ही करूगा। इनू पुट करो x की जगह x प्लस 2π, बिकॉज साइन 2π प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो ये तो बिल्कुल fx आएगा ही आएगा, इसका मतलब 2π तो पीरियड है। बट राइट नाउ वी आर लाइक राइटिंग द लिस्ट फॉर द फंडामेंटल पीरियड। So let us check for x plus pi. So what happens, sine of x plus pi ऊपर की होता स्क्वायर है, notice sin pi plus theta third quadrant minus sin theta, so minus sin x दा square। now here comes even odd वाली गल, हुण क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस दा स्क्वायर प्लस ही आ जाएगा, ठीक है, और ये मुड़ के fx ही आ गया। इसका मतलब 2π तो घट पाए सीगा, इसका मतलब पाए उहदा फंडामेंटल पीरियड हो गया, ठीक है। अगर इतने ऑड होंदा तो फिर माइनस बाहर आ जाना सी, तो फिर उहदा फंडामेंटल पीरियड ये नहीं होना सी, ठीक है, जो आप ऑलरेडी दस्या। तो इस करके जिन्ने भी ईवन है, तो या ईवन फंक्शन कोई भी हो, बाहर स्क्वायर हो या बाहर मॉड ले ला, मैं मॉड च भी इदा होएगा, पीरियड पाई हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, समझ आ रही गल। मैं अगला मॉड का दसना है, अगर मान लो साइन स्क्वायर की बजाय मॉड होंदा, वो अंदर भी पाई पुट करके माइनस साइन एक्स आना सी, फिर साइन एक्स आ जाना सी, ठीक है। सो अगर बाहर इन जनरल कोई भी ईवन होवे तो यू नो वह हाफ जिमें तुम चैक कर सकते हो, ठीक है। सो इत्थे दा पीरियड जिहड़ा पुत्र इन्हां सारियां दा की हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड लिख लो कि tan x रेज़्ड टू पावर n एंड cot x रेज़्ड टू पावर n, n कुछ भी होवे ईवन या ऑड, ठीक है, पीरियड इज पाई, दैट यू कैन चेक, क्योंकि tan पाई प्लस एक्स कितना होंदा पुत्र, tan x। हुण पावर उपर भावें ईवन होवे भावें ऑड हो, तो tan x ही आ गया, ठीक है। इस करके tan दे अंदर कोई मसला नहीं, tan कॉट्स, इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स, tan क्यूब एक्स, यू नो इन्हां सारियां दा पीरियड पाए होएगा, ठीक है। एक तीजा भी लिख लो जिहड़ा मैं ऑलरेडी डिस्कस किया कि सारियां छियां दा मॉड अगर हो जाए, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सीकेंड कोसेकेंड, ऑल 60 फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड फंक्शंस, इन्हां दा पीरियड पाई है, मॉड साइन एक्स का, मॉड कॉस एक्स का, ठीक है, इन्हां दा पीरियड पाई है। क्यों मैं नीचे एक्सप्लेन किया, क्योंकि माइनस जिहड़ा बाहर होना है ईवन फंक्शन करके प्लस बन जाएगा। समटाइम्स बच्चे ना इस ग्राफ्स उन्होंने इक्को ही लगता है, मैं ना बड़ा डिटेल्ड थोड़ा ज़्यादा रीजनिंग दे देना।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਫਰਕ, ਪੀਰੀਅਡ ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ sin x ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੋਡ sin x ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੋਡ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -ਹਾਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ +ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ mod of sin x. Is that clear? So sin x 0 पाई मतलब ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾਰਨਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ mod sin x ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨॉन डिफरेंशिएबल n पाई ਤੇ। now what will happen ਜੇ ਆਪਾਂ sin ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਆ sin x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 3π/2 sin 3π/2 -1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ +1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ x ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਫ ਸੀ, -ਹਾਫ ਸੌਰੀ, ਜਦ -ਹਾਫ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 1/4 ਆਏਗਾ। तो आह वाली वैल्यू जी है मॉड तो बिल्कुल नीचे -हाफ है, ऊपर +हाफ आ जाएगी। इतने अगर -हाफ है तो +1/4 आएगी। तो वट विल हैपन, ऑलरेडी मैं दस भी चुकिया, 0 तो लैके 1 के वाई होंगे ना, स्क्वेयर करते हैं तो वैल्यू घटती है। तो स्क्वेयर करने की होगा sin स्क्वेयर x का ग्राफ है पुत्र, वो कुछ यहो जिहा बनेगा। अगर आ sin x का ग्राफ है आ वाला sin स्क्वेयर x इस कितने पर्टिकुलर x से जिन्नी वैल्यू सी स्क्वेयर करें तो घट जाएगी और नीचे ना आ जाएगी, और ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ π/2 ਤੇ ਫਿਰ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मतलब ਇਹ ग्राफ थोड़ा ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, नीचे ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। इफ यू गाइस रिमेंबर मैं एक वीडियो 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਲਿਊ ਘਟੇਗੀ 90 ਤੇ ਫਿਰ 1 ਫਿਰ ਘਟੇਗੀ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 0, ਇੱਥੇ 3π/2 ਤੇ ਫਿਰ 1, ठीक है, ਫਿਰ ਘਟੇਗੀ। ਆ sin स्क्वायर x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ कि अगर इन्होंने पॉइंटा देखिए देयर इज़ नो शार्प कॉर्नर, इन्होंने पॉइंटा के स्लोप 0 है, विच यू कैन वेरीफाई बाय डिफरेंशिएशन। dy/dx करो कितना आएगा 2 sin x इंटू cos x दैट इज इक्वल टू sin 2x। अगर मैं कहा इतने स्लोप दसो 0 ते sin 0 0, इतने बिल्कुल टेंजेंट ड्रा कर सकते, स्लोप 0 है, इतने नॉन डिफरेंशिएबल नहीं। मॉड च की होंगे, मॉड साइन बिल्कुल ऊपर पड़ जाता है, शार्प कॉर्नर आता है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस दैट यू मस्ट नोट कि साइन स्क्वायर का ग्राफ एक डिफरेंशिएबल ग्राफ है, स्मूथ ग्राफ है, कितने शार्प कॉर्नर नहीं है, कितने जर्क नहीं है। 90 ते मिलेगा 1 1, इतने मिलेगा 3π/2 ते, बट बाकियां ते कुछ भी है क्योंकि स्क्वायर करता है वैल्यू घट जाएगी। इतने तुम होर हिसाब ला सकते हो, अगर मैं कहा sin x की पावर 4 तो वो वैल्यू होर घट जाएगी, बेचारा होर कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इदा इस तरीके होर जिन्ना जिन्ना तुम पावर करी जाओगे, क्योंकि 9 जिमें आ वाले पॉइंट है π/2 sin π/2 1 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, इतने जाएगा जाएगा बट विच घटता रहेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ। चलो मैं वैसे एडिशनल दसता, ठीक है, विच यू शुड नो, राइट। नहीं तो लगता ना कि वो तो एक सर ग्राफ तो एको जो भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं ना, वो देखो ना डिफरेंशिएट करके साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन इन्होंने पॉइंट स्लोप 0 आती है। सो सारे दे सारे अरे मॉड फंक्शन है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक दे, दे आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई, ठीक है। सो लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट वन, फोर्थ लिख लो। सो ये हो गया। उसके बाद एक जिहड़ा अलजेब्रिक फंक्शन जिहड़ा पीरियोडिक है, जिहड़ा बड़ा पॉपुलर, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 1 एंड यू गाइज नो द ग्राफ इटसेल्फ, 0 तो लेके 1, ठीक है, एंड 1 तो लेके 2, ठीक है, दैट इज पीरियोडिक। आह वाली ब्रांच कहाँ जाई जाती है। सो अगर पीरियोडिक है 1 दे नाल, इहदा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड विच इट इज़। क्यों? क्योंकि x जो मर्जी होए, मतलब x कुछ भी 7.8, इहदा फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.8, तो अगर 1 ऐड कर देंगे तो 8.8 का फ्रैक्शनल पार्ट भी तो 0.8 ही होएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड मोर ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अभी t है, अभी t है, बट घट्टो घट कितना है 1। सो अब 1 लेंथ रिपीट कर दी है। सो फंडामेंटल पीरियड इधर 1 हो जाएगा। येस इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन। इज दैट क्लियर? समझ आई गल?
एंड उहदे बाद नेक्स्ट लिख लो कि कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन दैट इज पीरियोडिक विद नॉट डिफाइंड पीरियड। ठीक है, पीरियोडिक क्यों है? f ऑफ x प्लस t इज ऑल्सो इक्वल टू k। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू fx। बट टी की ਹੁੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਓ 0 0.1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ तो 0 ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਬਟ ਉਹ ਐਂਡ ਕਦੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। तो ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈਗਾ ਬਟ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ f(x/gx)। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਹੁਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ f(x/gx) ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ x² + x + 1 x² + 2x + 3 ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਾਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, √x ਹੋ ਗਿਆ, log x ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 6 ਦੇ 6 ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਉਹ -1 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, तो नॉन पीरियोडिक। ठीक है, और log x हो गया, a⁻x है पुत्र। ठीक है, √x है, x की पावर n आ। सो दे आर ऑल नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पीरियोडिक नहीं है, ए ਅੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਨ ਪੀਰੀयोडिक ਹੈ। mod x ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, so they are all non-periodic functions। समझे गल? सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਸਟ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਦੇ 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕੁਅਰਿੰਗ, ਕਿਊਬਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ ਨਾ, ਮੋਡ और अलजेब्रिक चो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, पीरियड 1 है। कांस्टेंट फाइन नॉट डिफाइंड पीरियड ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀयोडिक है। बाकी जिन्ने भी है सारिਆਂ ਦੇ ग्राफ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, दे आर ऑल नॉन पीरियोडिक। ठीक है, x² x³ x⁻⁴ x की पावर n मैं जन लिखता है। ठीक है, दे आर नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆने हैं भी स्टैंडर्ड तो अगे। सो फर्स्ट नोट नंबर 1 कि if fx is periodic with period p, then the period of a time f of bx plus c bracket plus d is p by mod b। और जे तुसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ दियाँ वीडियो देखियां तो वो भी मैं समझाया सी कि हुण आ है कि बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल ना समझा देना। मान लो f(x) ले लिया sin x। ठीक है, सानू पता है कि 2π नाल ये फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक है, आ f(x) हो गया। f ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, अगर किसी ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करते फॉर इंस्टेंस 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ तो की ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ। तो जिथे x ਤੇ वैल्यू पहला सॉरी π/2 ਤੇ वैल्यू पहला 1 ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो ग्राफ ਤੁਹਾਡਾ की हो जाएगा, यू नो, स्ट्रैच हो जाता। ठीक है, सो ग्राफ y ਦੇ ਲੌਂਗ स्ट्रैच हो गया। बट इफ यू सी ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 2π ਹੋਈ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। प्लस d ਇਹ मैं कुछ +1 करना तो की होंगे, सारा ग्राफ ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। मान लो एक्स एक्सिस मान लो इतों कितने निकलनी शुरू हो गई, बट जी लेंथ रिपीट कर रही है ये तो 2π हुई है। एक्स के अंदर कुछ ऐड कर दो, वो की होंगे कि ग्राफ लैफ्ट या राइट में जाता है। ठीक है, अगर हाले बी ना मनो, बी नहीं है इतने। ठीक है, तो की होएगा लैफ्ट राइट में जाने, अगर साइन के ग्राफ में तुम इधर आ ग्राफ है साइन का, इनू भावें सज्जे पासे तू लो, इनू पिछले पासे लै दो, तो आ जी लेंथ है जी रिपीट करन दी है वो तो 2π हुई है। और आ भी मैं बड़ा डिटेल समझाया सी कि जब एक्स नू बी नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये की होंदा है, ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंप्रैस या स्ट्रैच करता है, डिपेंडिंग अपॉन बी एक तो वड्डा है तो कंप्रैस कर जाएगा। ठीक है, मतलब आ लेंथ नू घटाएगा जब आएगा, मतलब पीरियड ते फर्क पाएगा। ठीक है, उत्थे आपां डिस्कस कीता सी कि पीरियड जिहड़ा उन्ना टाइम्स हो जाता है। देयरफॉर अगर आ वाला नंबर कुछ हैगा, ठीक है, लेट्स से मतलब 0 कोई पॉजिटिव नंबर है या नैगेटिव है तो इतने मैं मॉड ले लिया तो पीरियड विल बी
आई वॉज ट्राइंग टू से कि जीरो नहीं होना चाहिए, दैट सर्टनली डोंट मेक एनी फंक्शन, तो नॉन जीरो नंबर ही आप कहांगे, तो पी बाय मॉड बी। सो ये चीज़ याद रखो, एने फर्क नहीं पाना, एने फर्क नहीं पाना, एने नहीं फर्क पाना, एक्स आर्गूमेंट के नाल जिहड़ा नंबर मल्टीप्लाई होया है ਉਹਦਾ पीरीयड जिहड़ा मेन फंक्शन का अगर पी है तो एस फंक्शन का पी बाय मॉड बी हो जाएगा। ठीक है, सो इफ समबडी इज़ नॉट क्लीयर अबाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन की, वो वीडियो देख सकता है, मैं उत्थे समझाया सी डिटेल च क्यों होंदा है। हुण मैं एग्जाम्पल्स छोटियां छोटियां ले ਲਾਂ, जिवें मैं कहां कि साइन ऑफ 4x का पीरीयड। ठीक है, नाउ साइन एक्स का पीरियड कितना है, चार्ट याद करो 2 पाई। ठीक है, तो यदा कितना होएगा 2 पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2। ठीक है, उत्थे मैं समझाया भी सी कि जब तुहानूं पीरियड पता लग गया तो यदि एक वेव जिहड़ी है अगे कित्थे खत्म होंदी सी 2 पाई ते हुण किन्ने ते खत्म होएगी पाई बाय 2। ठीक है, समझ गल, मतलब कोई भी पॉइंट जिहड़ा तुहाडा 2 पाई हुंदा सी ना, हरेक पॉइंट जिन्ना नंबर ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड हो जाएगा, सो पाई बाय 2। आ कितना हुंदा सी पाई हुंदा सी, फिर आ कितना हो जाएगा पाई बाय 4, वैसे भी देख सकते हो अध। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐदा ग्राफ कंप्रैस हो गया। ठीक है, हुण ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ मैं कुछ मल्टीप्लाई कर ਦਿੰਦਾ 2 कर ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਾਣਾ ਸੀ, बट पीरियोडिसिटी ਦੇ फर्क नहीं सी पैना। ठीक है, सो आ गल याद रखो। ठीक है, सो ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर ਲਈਏ। ठीक है, जिवें आ देखो, पहला एक बार अगेन पॉज करके तुसीं ट्राई करो, फिर मैच कर लियो आंसर। वो कहता जी 2 टाइम्स साइन ऑफ दिस दिस दिस, सानू हुण पता कि आ जिहड़ा नंबर है बस इहनूं वेखना आपां ते। साइन एक्स का पीरियड कितना है, साइन एक्स का पीरियड सी 2 पाई, सो ਇਹਦਾ कितना होएगा 2 पाई बाय 3 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 8 पाई बाय 3। गल खत्म। सो दैट इज पीरियोडिक विद पीरियड 8 पाई बाय 3। इज दैट क्लियर? इधर आ जाओ, आ थोड़ा समझो, 3x ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੋਡ ਸਾइन x, ਮੋਡ साइन x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਈ। ठीक है, हुण x की जगह की रखा गया 3x, तो कितना होएगा पाई बाय 3। आ समझ आई गल? पहला मॉड साइन एक्स देखो, मॉड जिवें साइन एक्स देखा सी, साइन एक्स का पीरियड कितना सी 2 पाई, एक्स का किनू मल्टीप्लाई किया है, अब बी लभ लिया, उन्हें डिवाइड करता। सो मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना है पाई, एक्स को कितना मल्टीप्लाई किया 3 नाल डिवाइड बाय 3 हो गया। सो आ फंक्शन जिहड़ा है, अगर हुण तुसीं ये हिसाब लग गया ना, इट्स प्रीटी ईजी टू ड्रॉ द ग्राफ्स। मैं कहां इहदा ग्राफ बनाओ, तुहानूं पता है कि इहदा पीरियड कितना हो गया पाई बाय 3, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ एक वेव जिहड़ी है वो पाई बाय 3 च मुक जाएगी। और आ 2 ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਅੱਧ होएगा पाई बाय 6, उत्थे वैल्यू पुट करांगे, आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर 2 आएगा, और आही चीज़ फिर रिपीट करती रहेगी, गल खत्म। ठीक है बेटे, सो हाँ जी, आ ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाया, मैं कहा 4 टाइम्स इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 6 प्लस 7। मन के चलो, हालांकि मैं पहला लिखता सवाल, वैसे कॉम्पोजिशन चाहता है कि अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो ओवरऑल भी पीरियोडिक होंगे, बट फिलहाल मान लो कि साइन एक्स का पीरियड कितना पुत्र, साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, तो कितना मल्टीप्लाई किया आप 5 ना, सो देयरफॉर इहदा हो जाएगा 2 पाई बाय 5, सो आ इहदा पीरियड आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यू गाइस रिमेंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ्स, क्योंकि अगर साइन का ग्राफ है, रिमेंबर यहो जिहा कुछ इंटीजर का ग्राफ बनाया सी लगभग जिहा, सो क्योंकि ए रिपीट करेगा उसके बाद से आ भी कर जाएगा, सारा चलता रहेगा। ठीक है, सो इस करके अगर अंदर वाला फंक्शन ना एफ ऑफ जी पीरियोडिक हो ना, अंदर जिवें अंदर साइन है पीरियोडिक है तो ओवरऑल पीरियोडिक होए, उन्होंने आप विस्तार च देखांगे नैक्सट वीडियो च कंपोजिशन च। अच्छा इधर आ जाओ, साइन रिस्ट पर 4। ठीक है, तो आप हुणे गल की ईवन होगी पावर, तो साइन एक्स की पावर ईवन, पीरियड कितना होएगा पाई, एक्स को कितना मल्टीप्लाई किया पाई दे नाल, तो डिवाइड बाय पाई, कितना आ जाएगा पीरियड 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। तो इफ यू गाइज वांट मी टू ड्रॉ द ग्राफ, मतलब ਇਹਦੀ एक ਜਿਹੜੀ ब्रांच है वो ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ 1 ਚ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੂਜੀ आ जाएगी। ठीक है, ਇੱਦਾਂ ही -1। ठीक है, बिकॉज ईवन वाला नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, सो एक पूरा 1 पे आ जाएगा। और सो आ कितना होएगा हुण ਇਹਦਾ हाफ 1/2, और 1/2 पुट करो साइन पाई बाय 2 1, आंसर 1 ते कितना आएगा हाफ ते सॉरी 3 आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, सो रेंज यदि 0 to 3 पीरियोडिक विद पीरियड 1। ठीक है पुत्र, सो एक ग्राफ में वैसे चलो एडिशनली बना रहे हैं, वैसे अदरवाइज तुसी
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ should be easy right now, ठीक है, ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, x ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਸੋ p ਬਾਈ mod of b, therefore periodic with period 1 divide by 3, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ periodic ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/3, ठीक है। आई रिकमेंड ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ 1/3 ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। अच्छा, आह वाला tan क्यूब, सो tan x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 7 ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵਿਦ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਈ ਬਾਈ 7। cos square x is periodic with period pi, multiply कितना है √2 ना, so that is pi by √2 ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ठीक है। so I hope ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ठीक है, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ठीक है। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ले लो ए ते बी, सो अगर एफ एक्स का पीरीयड t1 है तो जी एक्स का पीरीयड t2 है, तो उन्होंने प्लस माइनस करांगे, इल बी पीरियोडिक विद पीरीयड विच इज़ दी LCM ऑफ t1 एंड t2। हुण तुहानूं LCM लेना नहीं होना, आई नो, ठीक है, विच इज़ दी LCM ऑफ t1 एंड t2। सो मैं तुहानूं क्वेश्चन दूंगा, तुसीं सिंसीयरली सॉल्व करोगे यार, मैच करोगे, देखो तुहाडा LCM ही गलत है हुण, ठीक है। चलो एनीवेज, सो ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि प्लस माइनस करांगे, फंक्शन पीरियोडिक होने नंबर 1, एंड सैकेंड ਉਹਦਾ पीरियड कितना होएगा t, दैट इज गोइंग टू बी द LCM ऑफ द periods of the two functions, right। तो जिदा if I say कि मैं कहां mod sin 2x plus mod cos 3x, चलो let us see, ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ जरा, ਇਹਦਾ पीरियड कितना है mod sin x ਦਾ, mod sin x ਦਾ पीरियड है पुत्र पाई, सो ਇਹਦਾ कितना हो जाएगा π/2, ठीक है। अच्छा, ਇਹਦਾ कितना पीरियड पाई, मतलब mod cos x ਦਾ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ π/3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ LCM ਕੱਢੋ, LCM ਕੱਢੋ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ π/6, ਕਈਆਂ ਨੇ π/3, π/2, ਇਹਦਾ LCM ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, LCM of the fractions, LCM of a by b comma c by d, that is equal to LCM of the numerators। अच्छा, ਹੁਣ एक और चीज़ आने वाली है जी तुहानूं नहीं आती, that is HCF of the denominators, ठीक है, b and d the denominator the HCF। so LCM of the fraction is like LCM of the numerators, ठीक है, divide by the HCF of the denominators, ठीक है। so अगर मैं ਇਹਦਾ LCM चाहिए, ठीक है, that is equal to LCM of pi and pi, ठीक है, and HCF of 2 and 3, ठीक है। एक चीज़ सीखने लगे, फिर एक होर आ गई जी नहीं आती, जस्ट किडिंग, मतलब HCF तो आते होना तुहानूं, ठीक है। सो पाई ते पाई दा LCM पाई, 2 ते 3 दा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किहड़ा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है 1, ठीक है। सो देयरफॉर दैट इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, ठीक है, मतलब पाई के बाद दोनों फिर कट्ठे तुरनगे। अच्छा, इन्हों आप ग्राफिकली विजुलाइज भी कर सकते हैं, साइन 2x का पीरियड कितना कढ़िया सी आपां π/2, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया कि ये π/2 आ, इत्थे π/2 के बाद फिर रिपीट करेगा π/2 π/2, अब पाई हो गया, इदां बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये साइन 2x का है, तो इत्थे अब पाई है, लेट मी ट्राई टू ड्रॉस ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ नीचे, ਇਹਦਾ पीरियड कितना है, हाँ जी π/3, π/3, ਇਹਦਾ मतलब पाई ਦੇ बिल्कुल 3 इक्वल पार्ट करता, ਇੱਥੇ π/3, ਇਹਨੂੰ डबल कर दो 2π/3, ਇਹਨੂੰ एक बार फिर कर दो π/3 ਐਡ ਤੇ 3π/3 पाई आ गया। तो मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ π/3 ਤੇ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਬਲ 2π/3 3 टाइम। सो कैन वी सी ये भी पाई लेंथ ते बिल्कुल एक बार मुक गया, आ भी पाई लेंथ ते मुक्या। सो अगर इन्हों इत्थे देखो, इफ वी लाइक गोइंग टू ऐड दैम, तो ये फिर पाई दे बाद इदां इकट्ठा चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ LCMs कम इनटू द पिक्चर,
ठीक है। सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ LCM of रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर है कोई एंड एक कोई इरेशनल नंबर है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं कहा पाई ते 3 का LCM लभो, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक सैकेंड नोट होर, थर्ड इनफैक्ट LCM ऑफ irrational numbers of different types, ठीक है, I'll explain the meaning, like different types does not exist। ठीक है, जो मैं कहा √2 ਤੇ √3 ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ √2 ਤੇ √8 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ √2 ਹੈ ਆ 2√2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਪਲਾਈ these, ठीक है, in the problems। ओके, हाँ जी, आ कहता आ एक फंक्शन प्लस दूजा। अच्छा, ਇਹਦਾ पीरियड कितना है sin x का 2π, कितना डिवाइड होया 2π ना, बाकी तो मसला ही कोई नहीं, ਇਹਦਾ 1 आ जाएगा। सो ਇਹਦਾ t1 ਤੁਹਾਡਾ 1 आ गया। हाँ जी, ਇਹਦਾ t2, ਇਹਦਾ 2π sin x का, सो ਇਹਦਾ होएगा 2π बाय 3π। ठीक है, 2π बाय दिस, सो कितना आ गया 2/3। ठीक है, सो देयरफॉर इन्हां दा LCM जिहड़ा आ इस फंक्शन का पीरियड होएगा LCM ऑफ वट 1 and 2/3। ठीक है, सो देयरफॉर दैट इज नथिंग बट वर, हाँ जी, LCM ऑफ 1 and 2 and HCF of 1 and 3। सो 1 ਤੇ 2 ਦਾ LCM, हाँ जी 2, 1 ਤੇ 3 ਦਾ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। सो देयरफॉर दैट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2। ठीक है पुत्र, समझाई गल बेटे? सो नेक्स्ट, हाँ जी, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 3x, sin 3x का ठीक है कितना हो गया 2π, ਇਹਦਾ हो गया 2π/3। मॉड cos 6x ਦਾ कितना है, मॉड cos x ਦਾ π/6, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਈ LCM। ठीक है, सो हाँ जी, की करिए ਹੁਣ, दैट इज LCM ऑफ 2π and π डिवाइड बाय HCF of 3 and 6। हाँ जी, 2π ਤੇ π ਦਾ LCM 2π and 3 ਤੇ 6 the highest common factor 3, so therefore that is periodic with period 2π/3। ठीक है, ओके नेक्स्ट, हाँ जी, sin x टाइप है, ਇਹਦਾ पीरियड होएगा 2π/2√3। ठीक है, एंड ਇਹਦਾ होएगा, सो कह सकते हैं कि π/√3। हाँ जी, ਇਹਦਾ कितना हो गया पुत्र, 2π/5√3। ठीक है, सो ये दोनों का की करना आप LCM, सो की होएगा दैट इज इक्वल टू LCM ऑफ द न्यूमिनेटर्स। सो पाए ते 2π दा एंड HCF ऑफ द डिनोमिनेटर √3 ते 5√3 दा। सो हाँ जी, कितना हाँ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ LCM आ गया 2π, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, हाँ जी √3 दोनों चो। ठीक है, सो दैट्स इट, सो दिस इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर और अगर एवं कुछ दिता होंगे ना, मतलब मैं लिखता कि साइन ऑफ x/√2 प्लस कॉस ऑफ x/√3। सो अगर मैं कहा कि ਇਹਦਾ ਲੱਭੋ ਜੀ पीरियड, सो ਇਹਦਾ कितना होएगा लाइक 2π/1/√2, दैट इज 2√2π। इदां आ जाएगा 2√3π आ जाएगा। सो जब मैं इन्हों का LCM ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, सो लाइक 2π ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ठीक है, तो कॉमन ही है। सो √2 ਤੇ √3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ LCM है, क्योंकि दे आर द इरेशनल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इन्हों का LCM नहीं निकलेगा, हैंस दिस फंक्शन इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, सो इस करके आ फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। इज दैट क्लियर? सेम टाइप के होण फिर LCM आ जाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, लेट्स डू फ्यू मोर। वो कहता जी आ फंक्शन देखो की है cos ऑफ πx, x माइनस इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
सो हुण cos x का पीरियड 2 पाई डिवाइड बाय पाई, ठीक है। सो ਇਹਦਾ आ गया 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ਦਾ ਤੇ 1 है ਤੇ 2 ਤੇ 1 ਦਾ LCM 2 आ जाएगा। हैंस दिस फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर द लेंथ और इंटरवल लेट्स से 2। समझे गए? तो लगभग वही हो गया, ठीक है। तो x है, सो ਇਹਦਾ cos 2 पाई x ਇਹਦਾ हो जाएगा 2 पाई बाय 2 पाई, ठीक है। समझा रही गल? ਇਹਦਾ 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ है 1, ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ 2 तो 1 बाय 2 ਤੇ 1 ਤੇ 1 बाय 2 ਦਾ LCM दैट यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। आई होप समझ आ रही गल? हाँ जी, आ देखो tan क्यूब x, tan क्यूब x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ tan x ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ x ਦਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ, तो ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3, ਠੀਕ ਹੈ 3 ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ LCM that is equal to numerator ਦਾ LCM 2 pi and pi ਦਾ, so HCF of 1 and 3, so that is equal to 2 pi by 1 ਤੇ 3 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਤੇ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਵਿਦ ਪੀਰੀਅਡ 2 pi, ठीक है। सो अच्छा इधर देखो मॉड साइन एक्स ਇਹਦਾ पाई है, ठीक है। सो साइन क्यूब क्यूब ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ है ना, क्योंकि ਐਵੇਂ सोचो साइन क्यूब एक्स ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 पाई, बट मॉड ਲੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ पाई, नीचे वाला पार्ट ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। सो ਇਹਦਾ बेसिकली साइन क्यूब एक्स मॉड ਦਾ ਹੁੰਦਾ है पाई, बट ਹੁਣ ਕੀ एक्स ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ हाफ ना, तो ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ पाई बाय 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई, ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ T1। ऐदा ही ਇਹਦਾ कितना आ जाएगा, हाँ जी पाई बाय 1 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5 पाई, ठीक है। सो LCM ऑफ, ठीक है 2 पाई एंड 5 पाई, ठीक है। सो पाई ते कॉमन ही होते आ ही जाएगा, 2 ते 5 का LCM 10, सो दैट इज इक्वल टू 10 पाई। समझ गए पुत्र? सो ये तो देखो ਇਹਦਾ पीरियड आ गया। चलो एक और मैं इस वाले लिखना, लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x 3x अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, ਇਹਦਾ पीरियड ਲੱਭੋ। नाउ अगेन ਇਹਦਾ पीरियड कितना है पुत्र 1, ਇਹਦਾ कितना है 1 बाय 2, ਇਹਦਾ 1 बाय 3 1 बाय n, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ है LCM, that is equal to LCM of the numerators which is 1 divide by HC of the denominators 1 2 3 so on n, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ 1, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब that is periodic with period 1, ठीक है। ਤੇ नेक्स्ट नोट ਇਹਦੀ ਇੱਕ एक्सेप्शन लिख लो बेटे। सो एक्सेप्शन ऑफ this LCM rule, if I say कि mod sin x, जनरली तो केमिस्ट्री च होनी एक्सेप्शन है, मतलब ਇੱਥੇ एक्सेप्शन ਦਾ मीनिंग मेरे ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਭੋ, ਤੇ sin x ਮੋਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, cos ਮੋਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ LCM ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਪਾਈ ਆਏਗਾ, ठीक है। सो पाई ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ फंडामेंटल पीरियड ਦੀ। बट अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि यार पाई बाय 2 ਤੇ चेक ਤੇ करो, ठीक है। सो लेट अस चेक साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस x प्लस मॉड cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस x, हाँ जी साइन 90 प्लस x cos x, cos 90 प्लस x माइनस साइन x। याद रखियो अगे मॉड आ उन्हें नैगेटिव ਨੂੰ कंज्यूम करा देना, तो कितना आ गया मॉड cos x प्लस मॉड sin x। सो व्हाट हैपेंड, ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਤੇ ਪਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਈ ਬਾय 2, ठीक है। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। तो ਉਹ ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ p ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ p ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਾਈ, तो ਉਹਦੇ p बाय n ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ p बाय 2 पाई बाय 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ,
और कद ज़्यादा कंप्लीमेंट्री होण, साइन होवे इधर कॉस होवे, मतलब क्रॉस कर जे ना, साइन इधर से इधर आ गया, कॉस इधर से इधर आ गया, मतलब स्वैप कर गया इदां। फाइनली सेम रहा, विच प्लस सीगा। जे विच माइनस हुंदा फिर नहीं सी आना, क्योंकि इत्थे माइनस आ जाना सी, वो सेम नहीं है। तो इहो ਜਿਹੇ फंक्शन जिथे साइन है, कॉस है, विच प्लस है और बाहर ईवन फंक्शन है, तीन चीज़ां, अंदर साइन कॉस है, बाहर ईवन फंक्शन है, मॉड है, या कोई होर ईवन होवे, फोर्थ पावर होवे, विच प्लस होवे, तो उन्ना की होएगा, वो स्वैप कर जाएगा। तो इदां दे सिंपल याद रखो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिन्ना पीरियड पहला है ਉਹਦਾ पाई बाय n या p बाय n, सॉरी चेक कर लो, जिवें पाई सीगा तो हाफ चेक कर लिया, पाई बाय 2, पाई बाय 3, और जनरली हाफ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पाई चेक कर लिया, 1/2 तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा। ठीक है, सो इदां ही हुण इत्थे अगर मैं मॉड की बजाय बाहर पुत्र लेना पावर 4, ठीक है, हुण भी तो गल उही है, हुण भी की होएगा, साइन एक्स की पावर 4 पीरियड पाए है, कॉस एक्स की पावर 4 पीरियड पाए है, बट इफेक्टिवली ਇਹਦਾ पाई बाय 2 आंदा। क्यों? क्योंकि अगर पाई बाय 2 चेक करोगे बिल्कुल ऊपर वाली नाल जी, तो साइन ऑफ 90 प्लस एक्स दी पावर 4 कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स दी पावर 4, सो एक ही आ जाएगा, साइन दा कॉस आ जाएगा, कॉस दी पावर 4x, आ कितना आएगा माइनस साइन एक्स, बट पावर इवन है, सो इस साइन एक्स की पावर 4 आ जाएगा। सो वही मैं तीन चीज़ें याद कराई हैं, आ कंप्लीमेंट्री हो लाइक है ना, रिप्लेस करके एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय 2 पुट करके आ रहे, अगे प्लस माइनस आता तो इन्हें ईवन ने कंज्यूम कराता। ठीक है, देयरफॉर दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई बाय 2। मतलब ਇਹਦਾ अगर ग्राफ बनाना है तो मैं सिर्फ 0 टू पाई बाय 2 च बना ला, बाकी वो रिपीट करता रहेगा। गल समझ आई? या इत्थे हुण टैन होवे, इत्थे कॉट होवे, ठीक है, टैन दा कॉट बन जाना, कॉट दा टैन, बाहर ईवन होवे। ठीक है, जे माइनस हुंदा इत्थे फिर नहीं सी गल, क्योंकि माइनस है, आ स्वाप तो हो गया, इत्थे माइनस आ गया, बट आ सेम नहीं है। ठीक है, फिर नहीं, ठीक है, फिर तुहाडा पाए हो ही रहा। ठीक है, सो इस करके इहो जिहा की करना है कि जे पीरियड पी आउंदा है पहले दा, तो पी बाय एन ते चेक कर लो, और एन जनरली हाफ ते ही गल बन जाती है। ठीक है, नहीं तो वो मैं जनरल ते तुहानूं दस ही दिता है। ठीक है, और आ वाली एग्जाम्पल याद रखनी। ठीक है, पुछ लैन तो सानूं सीधा पता होगा। ठीक है, एक्स एक्स सेम सी इत्थे बेटे, साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स थोड़ा स्वाप हो जाए, मतलब सेम आ जाए, इधर तो इधर आ जाए। ठीक है पुत्र, सो जिदा हुण एक होर मैं कहां कि मैं कहां मॉड साइन 3x प्लस मॉड कॉस 3x। अच्छा, अगर मॉड साइन एक्स हुंदा प्लस मॉड कॉस एक्स हुंदा, असीं हुणे पढ़िया ਇਹਦਾ पीरियड कितना है इफेक्टिवली पाई बाय 2, तो ਇਹਦਾ पाई बाय 2 है तो की होया 3 नाल मल्टीप्लाई होया, तो ਇਹਦਾ डिवाइड हो जाएगा, सो पाई बाय 2 बाय 3 दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 6। सो दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई बाय 6। ठीक है बेटे, सो आई होप आ चीज़ क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ। सो मॉड साइन मॉड कॉस ਇਹੋ ਜਿਹਾ। सो एक्सैप्शन क्यों आई बेसिकली कि लीस्ट उन्हें क्या सी मिनिमम टी, तो जिन्ना सानू देखने नज़र आ रहा सी जिवें पाए उस तो घट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस करके घट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो करके वो बदल जाता है, बट इफेक्टिवली फंक्शन साड़ा सेम आ जाता है।